हेलो स्टूडेंट्स, आ गए आप लोग? आ गए हो तो पढ़ लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 में कंटिन्यू करते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? सिग्निफिकेंट फिगर्स। याद हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल, एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स? अगर याद है तो आज उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला है। पहले ले लेता हूँ एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.5। Exercise numerical 2.5. A new unit of length is chosen such that the speed of light in vacuum is unity. क्या बोल रहे हैं? Speed of light. What is the actual value of speed of light? 3 into 10 raised to 8 meter per second. Right? But new unit of length is chosen such that the speed of light in vacuum is unity. ऐसा नया यूनिट डिसाइड किया है जिसके लिए वैल्यू क्या मिल रही है? 1. यूनिटी मीन्स 1. न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ अपॉन सेकेंड. व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? दैट इज यूनिट ऑफ लेंथ अपॉन unit of time that is second, but they have decided new unit of length. उसे मैं बोल देता हूँ न्यू यूनिट. तो उसके लिए वैल्यू क्या मिलेगी? 1. किसके लिए? स्पीड ऑफ लाइट के लिए. अगर स्पीड ऑफ लाइट को नए यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाए तो स्पीड ऑफ लाइट क्या मिलेगी? 1. यूनिटी. व्हेन वी आर कंसिडरिंग न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, सो स्पीड ऑफ लाइट इज 1 new unit of length upon second. What is the distance between the sun and the earth in terms of the new unit of length? मीटर नहीं कंसीडर करना है. in terms of new unit of length, in terms of new unit of length, if light takes 8 minutes and 20 seconds to cover this distance, time t is given to us. time t is equal to 8 minutes plus 20 seconds. We have to convert this time into seconds. In 1 minute there are 60 seconds. So 8 into 60 plus 20 seconds. 8 into 60, 480. 480 plus 20, that is 500. So we have to find the distance between sun and earth in terms of new unit if light takes 500 seconds to cover this distance. 8 minutes and 20 seconds, that is nothing but 500 seconds. टाइम है हमारे पास, हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस. स्पीड भी है हमारे पास, स्पीड है, टाइम है, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करें? मुझे बताओ, क्या आप लोगों को स्पीड का फॉर्मूला मालूम है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? Speed, that is distance upon time. Speed, that is distance upon time. We are interested in distance between sun and earth. Therefore d is equal to speed into time. What is the value of speed in terms of new unit of length? That is unity. So 1 into time. What is time? 500. So this is nothing but 500 into new unit. Distance is equal to speed into time. 1 into 500. ये 1 क्या है? 1 that is new unit of length upon second. Into this is 500 seconds. Second will get cancel. 500 into 1, that is 500 new unit of length. So distance between sun and earth, that is 500 in terms of new unit of length. समझ में आ गया एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.5? एकदम परफेक्ट, बढ़िया. Now we will solve exercise numerical 2.11, that is based on
significant figures. स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.11. द लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर 4.234 मीटर. ये क्या दे दिया हमें? लेंथ 1.005 मीटर, ब्रेथ 2.01 सेंटीमीटर, थिकनेस रिस्पेक्टिवली. गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट द सिग्निफिकेंट फिगर्स. मतलब हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए क्या फाइंड करना है? एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट. तो एरिया फाइंड करना है तो पहले हमें लेंथ मालूम है कितनी है? 4.234 मीटर, राइट. ब्रेथ दैट इज 1.005 मीटर एंड थिकनेस that is 2.001 thickness that is 2.01 centimeter, thickness 2.01 centimeter, length that is in meter, breadth that is in meter, but thickness that is in centimeter. काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं. थिकनेस किस में दी हुई है? सेंटीमीटर में. therefore we have to convert this centimeter into meter. This length, breadth and thickness should be in same unit. ये तीनों किस में होने चाहिए? सेम यूनिट में होने चाहिए. तो if I convert centimeter into meter, then this can be written as centi means, याद है डेसी को सेंटी मिली. सेंटी मतलब क्या है? 10⁻² मीटर. 10⁻², that is nothing but 2.01 divided by 100. So 0.0201 meter. Length, breadth and thickness. Now length, breadth and thickness, all these things are in meter. चलो मीटर में हो गया. अब लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस तीनों ऐसा यूनिट में आ गए. अब हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ क्यूबॉइड? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट is, what is the formula of area of cuboid? Twice length into breadth plus breadth into thickness plus thickness into length. Twice length into breadth plus breadth into thickness plus thickness into length. आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट का फॉर्मूला आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. तो याद रखना है एरिया ऑफ क्यूबॉइड दैट इज ट्वाइस लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू थिकनेस प्लस थिकनेस इनटू लेंथ. ट्वाइस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ? लेंथ दैट इज 4.234 इनटू 1.005 plus breadth that is 1.005 into 0.0201 plus thickness into length 0.0201 into length 4.234 मीटर. अब इसे कैलकुलेट करना होगा. 4.234 इंटू 1.005, 1.005 इंटू 0.0201 एंड 0.0201 इंटू 4.234. कैलकुलेट करें और मुझे बताएं क्या आएगा.
यहाँ पे देखिए 4.234 इंटू 1.005 क्या मिलेगा 4.25517 1.005 इंटू 0.0201 दैट इज 0.0202005 0.0201 इंटू 4.231 0.0201 इंटू 4.234 दैट इज 0.0851034 सबको ऐड कर दें क्या मिलेगा 2 एज इट इज दिस इज नथिंग बट 4.360479 नाउ 4.360479 इंटू 2 दैट इज 8.720947 क्या बढ़िया आंसर मिला है हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट का। क्या यही कंसिडर करना है? नहीं, क्या बोला है गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए हमें आंसर लिखना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या हैं? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल लगेगा। क्या बनेगा? हियर वी हैव टू राइट फाइनल आंसर अप टू लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 4। चलो यहाँ पे बताओ 1 2 3 4। लास्ट वाले में बताओ कितने हैं? 1 2 3। यूनिट चेंज भी कर देंगे तो लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। So list number of significant figures are 3. So we have to write final answers up to 3 significant figures only. So round up this to 3 significant figures. Round up करें 3 significant figure तक जाऊँ तो 1 2 3. The digit to be dropped is not greater than 5. Therefore directly we can write 8.72. What is the unit of area? अब याद होना चाहिए एरिया का यूनिट क्या है। यहाँ पे सारे यूनिट्स किस में लिए हैं? मीटर में। तो एरिया का यूनिट क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर। सो द फाइनल आंसर इज 8.72 मीटर स्क्वायर राउंडेड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो दिस वे वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो यहाँ पे क्या मिल गया? एरिया। अब किसकी बारी? वॉल्यूम। चलो एरिया हो गया, वॉल्यूम पे आ जाते हैं। मुझे बताओ वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला है, याद है? वॉल्यूम V इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH और LBT। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस। What is the value of length? 4.234 into breadth, that is 1.005 into thickness, that is 0.0201. 4.234 into 1.005 into 0.0201 कैलकुलेट करें। तो कैलकुलेट करेंगे क्या मिलेगा हमें? 0.0855289. बट हियर ऑल्सो वी हैव टू अप्लाई द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन because we have to write final answer by considering proper significant figures. So here we have to apply the multiplication rule, and in multiplication rule already we have studied the final answer should retain least number of significant figures as are there in original number. ओरिजिनल नंबर में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं उतने तक यहाँ पे आंसर लिखना है। तो फाइनल में कितने कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो ये ओरिजिनल वैल्यूज लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। तो फाइनल आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 3। चलो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाएं तो 0 0 तो काउंट होने वाले हैं नहीं, बिकॉज लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट. सो वी हैव टू राइट आंसर अप टू 3 significant figures. The digit to be dropped, that is 2.
that is less than 5. So here the final answer, that is 0.0855 meter cube. This is the volume of given rectangular sheet. Volume, that is 0.0855 meter cube, and area, that is 8.72 मीटर स्क्वायर. यूनिट में भी खास ध्यान रखें, एरिया का यूनिट क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट क्या बनेगा, मीटर क्यूब. अगर यहाँ पे भी गड़बड़ी कर दी तो हो सकता है कि आपके मार्क्स कट जाएं. तो यूनिट पे खास ध्यान दें. यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नेम ऑफ दिस चैप्टर इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट. तो यूनिट तो खास आने चाहिए. क्या आपको एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.5 एंड एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.11 समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो प्रैक्टिस करें. आई एम गिविंग यू एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.5 एंड 2.11 in homework. Write it 2 times in your notebook. With this I am ending today's lecture. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.